यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। Namaskar and a very good evening and welcome to all. I, Abhiraj Singh Chauhan, Assistant Professor, SNS Law College. I'm very delighted to host today's webinar on behalf of SNS Law College Indore. Our college is a sister concern of in IMI group of institutions, and it's one of the most emerging colleges of Madhya Pradesh. During this period of lockdown, we have decided to not let the flow of knowledge to be hampered, and hence SNS Law College has made an effort to bring together some great personalities from the legal field. So today we have with us Mr. D.K. Dubey sir and Advocate Rahul Sethi sir as eminent speakers for the session. Namaskar sir and welcome. And just to start with, he needs no introduction, but he is an epitome uh, uh, of legal field and a very known and renowned personality. Um, I, li- uh, I would like to welcome Professor D.K. Dubey sir, who is a very renowned faculty of law, who is an advocate in the Supreme Court and a judicial trainer. He is a person who has devoted he is a person who has devoted his entire life in the field of law towards creating awareness and bringing out the best of the people in this field. He has practiced in Allahabad High Court and other high courts also. And while practicing, he has realized that there is a need to spread awareness, legal awareness throughout this country. And hence, he has started imparting legal knowledge and guidance, not only to the legal practitioners, but also to the judges of the lower judiciary and all those who are to get benefit from the words of wisdom which he has been imparting through various modes. Uh, Apart from that, he is also a visiting faculty in many of the prestigious institutions in North India. And it is an honor for us to have Professor D.K. Dubey, who, who, who will give his insights on the issue. But to begin with, sir, first of all, heartily welcome to you on this platform, sir. Thank you. I would like to begin with, sir. We have just discussed what Advocate Rahul Sethi sir had said about the issue, but here is the thing, sir. When we call ourselves, when we talk about just a second, sir. Yes. Sorry for the interruption, sir. When we talk about naming, it comes with association of the sentiments we have. Like when we call Bharat or Bharatvarsh, it has been always debated and it started with the Constituent Assembly also, but there is an ancient connection too with this. Sir, I would like you to give some insights on what is the issue and why it was so much debated while forming the constitution, and what is the ancient connection with it, and why it is so much important to us. And as we are seeing, there are many perspectives on whether is it the right time to have it or not. But I would like you to throw some light and paint a picture for us to have a better insight, sir. Okay. Thank you, Abhiraj sir, and whatever the legal discussion already completed by Rahul sir. So now all of you are comfortable in Hindi also? Comfortable in Hindi also? I believe Yes, so, sir. sir. Yeah. Okay. Yes, sir. Okay. Yes. हम लोग कुछ बेसिक चीजों से शुरू करें तो अच्छा रहेगा. Actually, what the law is, लॉ है क्या और लॉ कैसे काम करता है, इसको भी हमको समझने की आवश्यकता पड़ती है, तब हम लॉ को बना सकते हैं. लाइक एक सामान्य सी बात है
कि भारत में जो प्रैक्टिस में है, जो कस्टम है, जो मेरे लिए नोन है और मेरे लिए जो प्रैक्टिकेबल है, उस पर लॉ बनाया जा सकता है। लॉ बनाकर हमको नहीं चलाया जा सकता। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि लॉ बन गया इसका मतलब ये नहीं है दैट इज फिक्स्ड, या वो हम ले जाएंगे और कहेंगे हजारों वर्ष तक ऐसा चलेगा। देश में जब भी कानून बनता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाकर रखते हैं। And whenever we are making a constitution as a basic document, means whatever we have to deal inside of this constitution, inside of this country, we have to cross verify with the constitution of that country. And when you are making the constitution, हमारे देश में एक बड़ा भारी झूठ हमको बताया गया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पूरे संसार से उधार का मांग के रखा और हमको बता दिया ये रशिया से लाए, ये यहां से लाए, ये वहां से लाए, ये ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, ये अमेरिका से ले लिया। अगर हम एंशिएंट सोसाइटी को देखेंगे तो एंशिएंट टाइम का जो हमारे यहाँ चलन है, जो प्रैक्टिस है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसको जो दिखा रहा है वो ये है कि हर चैप्टर के आगे जो भी चैप्टर आप देखेंगे, जो पार्ट्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये पाएंगे कि भगवान राम, फंडामेंटल राइट्स के पोर्शन पर जब आप आ रहे हैं तो भगवान राम दिखाई दे रहे हैं, कहीं गुरु गोविंद सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भारत माता की तस्वीर लगी हुई है, कहीं पर भगवान बुद्ध लगे हुए हैं। हर चैप्टर के आगे एक सिंबल बना हुआ है कि नाउ दिस चैप्टर डिनोट्स टू दिस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। अब आधुनिक समय पर जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर चलते हैं, तो आधुनिक समय के जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका एक कंपैरेटिव स्टडी किया गया और ये पॉसिबल है कि ड्राफ्टिंग वहां से ली गई हो कि आज की तारीख में कैसे ड्राफ्ट करना है इन मॉडर्न टाइम, बट द कॉन्सेप्ट इज नॉट अडॉप्टेड फ्रॉम देयर। हम वहां से कॉन्सेप्ट अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, हम वहां से केवल ड्राफ्टिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइक वी आर द practitioner and whenever I directed to my junior to make a petition, I also forwarded the same type of petition that this is the petition, you have to change the content, but like this you can draft it. So हमने कहीं से उठाया और उसी तरह का ड्राफ्टिंग कहा कि ऐसे कर लो, ये ड्राफ्टिंग वहां की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन वहां से उठाया। इसलिए कोई भी संवैधानिक डॉक्यूमेंट विश्व के किसी कंट्री का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो उस कंट्री में चलने वाली प्रैक्टिसेस, वैलिड लीगल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, उन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो आज की तारीख में whenever we challenge any law in the Supreme Court, we challenge on the basis of the Constitution, because Constitution is the basic document of the modern time. But whenever there is some changes or some amendment in the Constitution of India, and now we want to challenge itself, अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही परिवर्तन कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम चैलेंज करने पर चल दिए। वी आर चैलेंजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हेन वी आर मेकिंग अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट आल्सो। जब हम फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं तो अब मुझे बताओ कि हम कहां से क्रॉस वेरीफाई करें कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही ऐसा कह रहा है। अगर हम इस बात को केशवानंद भारती और गोलकनाथ में लेकर जाते हैं तो गोलकनाथ में उसने कह दिया कि फंडामेंटल राइट अमेंड ही नहीं किए जा सकते, लेकिन केशवानंद भारती में उसने कहा कि नॉन अमेंडेबल इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ इंडिया, कि जो चेंज नहीं हो सकता वो भारत का कैरेक्टर ही नहीं है, दैट इज नॉट अ पब्लिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। एंड पब्लिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री इज दिस, दैट वी विल रन विद द चेंजिंग सोसाइटी। So whatever the change has been coming in the society, we have to make the law as per the changing society. But basically, we have to cross-verify with the Constitution of India, and that Constitution of India must be amended or act as per the public policy of the country. तो देश की पब्लिक पॉलिसी के आधार पर कोई भी संविधान बनाया जा सकता है, तो संविधान की संवैधानिकता भी पब्लिक पॉलिसी पर चलती है। और पब्लिक पॉलिसी क्या है? देश का जो हमारा नेचर है, अब आप ये कहें कि यूरोपियन लॉ भारत में लागू करवा देंगे तो हम नहीं करवा सकते। आप कहेंगे खाड़ी के जो विधि हैं वो पूरी कोई एक बुक वहां से उठाइए और भारत में लागू करवा दीजिए, तो भाई वो वहां की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के अनुसार ठीक होगी, हमारे अनुसार ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी ज्योग्राफी के अंदर हम जैसे वर्क करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग ही चेंज किया जा सकता है, उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही कानून बनाया जा सकता है। अगर उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप कानून नहीं बनाएंगे तो जनता विद्रोह कर देगी और जनता को वो कानून स्वीकार्य नहीं होंगे। अब सवाल आता है कि नेम ऑफ द कंट्री, तो भारत पर जो शब्द है, हमारे पास 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में भी इन तीनों शब्दों पर चर्चा हुई।
एक तो इंडिया जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बनाकर रखा गया था, जब 4 नवंबर सन 1948 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो उसमें लिखा था नेम ऑफ द कंट्री दैट इंडिया दैट विल बी द यूनियन दैट शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब वो प्रपोजल रख दिया गया और उसके बाद एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पर रखा गया तो केवल इंग्लिश वर्जन रखा गया, हिंदी वर्जन नहीं लिखा गया। हिंदी वर्जन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश का वर्जन तैयार हो गया और अडॉप्ट हो गया, तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि इसका प्रेसिडेंट को हिदायत दी जाती है कि इसका एक हिंदी वर्जन बनाकर रखा जाए। तो अब इंग्लिश वर्जन हमने बनाकर तैयार रखा था, उस इंग्लिश वर्जन में हमने इंडिया वर्ड इस्तेमाल किया। जैसे ही डिबेट पर आया तो आम पन्ना 15 तारीख को 15 नवंबर सन 1948 को आर्टिकल 1 डिबेट पर आ गया और डिबेट में जब आया तो मिस्टर ए अयंगार, अनंत स्वायनम अयंगार उनको कहते थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, उन्होंने अमेंडमेंट डाला। उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट वी आर यूजिंग द वर्ड भारत और भारतवर्ष, और उन्होंने कहा कि इंडिया को हटाकर भारतवर्ष शब्द ले लेना चाहिए। एक सेकुलर एक सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे केटी शाह, उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम जो रखा जाए वो सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट इंडिया रखा जाए। अब जब ऐसे बहुत सारी बहसें हो गई तो बात होती क्या थी कि डॉक्टर अंबेडकर से पूछा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा चेयरपर्सन ने कि भाई आप क्या कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद द नेम ऑफ भारत, और बट वी आर मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड इंडिया इन इंग्लिश, नथिंग एल्स। तो एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नाम की कोई इंग्लिश होती है क्या, भारत की इंग्लिश इंडिया कब कैसे हो सकती है। नाउ अगेन डॉक्टर अंबेडकर केम इन एग्जिस्टेंस एंड ही सेड दैट नो, the second reason is also here, we are using the word India because we are the part of the UNO and all of our word, our identity at present is in the name of India, that is why we have using the word India। अगर हम इंडिया वर्ड यहां से हटा लेंगे और भारत वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो पूरे विश्व से हमको कंपेटेबिलिटी बनाने में अभी थोड़ी समस्याएं होंगी और हम अभी भी स्वतंत्र हुए हैं। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का जब भाषण हुआ तो उसके बाद लोगों ने कहा व्हाई नॉट यू आर यूजिंग द बोथ वर्ड। तो आर्टिकल 1 में दोनों शब्दों का इस्तेमाल उस समय कर दिया गया, इंडिया और भारत, लेकिन 3 जगह पर यह शब्द आता है। एक तो प्रीएम्बल में आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर अडॉप्टिंग दिस ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी जगह पर आर्टिकल 1 में आता है नाम, और तीसरी जगह पर आर्टिकल 393 में ये शब्द आता है। 393 में उसने कहा कि इस संविधान का नाम क्या होगा। हम अक्सर मिस कर जाते हैं कि संविधान का भी नाम है क्या, देश का नाम समझ में आता है, संविधान का नाम। तब उन्होंने कहा 393 में कि दिस विल बी शॉर्टली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अब इनके हिंदी वर्जन हमने उठाए जो भारत सरकार ने ही पब्लिश किए। तो 393 में उन्होंने कहा इस संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, और जब इसमें उठाया प्रेम्बल में तो उन्होंने कहा हम भारत के लोग। और आर्टिकल 1 में जहां पर भारत का नाम का मसला आया वहां पर उन्होंने इंडिया दैट इज भारत ऐसे शब्द इस्तेमाल किया। हालांकि उस समय डॉक्टर अंबेडकर की बात सभी ने एक्सेप्ट इसलिए की होगी क्योंकि हम नए नए स्वतंत्र हुए थे, यूएनओ के हम पहले से मेंबर थे, वर्ल्ड वाइड हमारे जो रिलेशंस पूरे वर्ल्ड से डेवलप हुए थे वो इंडिया के नाम से हुए थे। लेकिन एक जब मैंने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री में उस कंट्री की जो ओरिजिनल संस्कृति है, जो उस कंट्री की साइकोलॉजी है, जो उस कंट्री का वे ऑफ लाइफ है, जो उस कंट्री में एडॉप्टेबल वर्जन्स हैं, उन वर्जन्स को डिनोट करता है और उनको ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। और जब भी कहीं इंपीरियलिज्म आता है तो मैं फिर से कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में कैसे देश चलेगा और लोग कैसे गवर्न होंगे, सरकारें कैसे चलेंगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी कॉम्पेटिबिलिटी क्या होगी, ये सब कुछ वैल्यू रखता है। इसलिए जब भी कोई किसी को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले वो उसका नाम चेंज करता है, क्योंकि अगर उसको अपने ओरिजिनल नाम याद रहेगा तो उसको अपने लिए ये संभव है कि अपने लिए वो एक गर्व महसूस करेगा, एक गर्व महसूस करेगा।
और जब वो गर्व महसूस करेगा तो संभव है कि जो नई इंपीरियलिस्ट पावर हैं, उन पावर्स के खिलाफ वो खड़ा हो जाए। तो जब वो उन पावर्स के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो फिर क्यों ना उसका नाम चेंज कर दिया जाए। इसलिए सबसे पहले इनका नाम चेंज करना किसी भी इंपीरियल पावर के लिए आवश्यक रहता है। जैसे अभी सेठी सर ने डिस्कस किया कि सीलोन श्रीलंका का नाम अंग्रेजों ने रख दिया। जैसे वो स्वतंत्र हुए तो उन्होंने सीलोन हटाकर अपना नाम फिर से श्रीलंका रखा, एक सम्मान पूर्वक। वैसे उसका लंका हमारे ग्रंथों में लंका नाम में इस्तेमाल होता है, लेकिन उन्होंने एक सम्मान का प्रतीक कहा, हम श्रीलंका है, हम एक सम्मानीय लंका है, हम सीलोन नहीं है। अंग्रेजों की निशानी हम यहां से हटाते हैं। तो क्या है कि जब भी कोई कंट्री किसी पर कब्जा करता है तो वो उसका नाम चेंज करता है। जब कोई किसी को गुलाम बनाता है तो भी उसका नाम चेंज करता है। जैसे अफ्रीका में जब हिंदुस्तान से लोग ले जाकर रखे गए, या संसार के किसी भी कंट्री से अफ्रीका में अंग्रेजों ने ले जाकर रखा, तो उनके सबसे पहले नाम चेंज किए लोगों के। और जो जो वो पुरुषवादी समाज है, उसमें भी आज भी यही प्रैक्टिस में चलता है कि जब किसी महिला की शादी होकर गई तो बहुत बड़े समाज में उस महिला का नाम वो अपने हिसाब से रख लेता है, अपने घर की कंपेटेबिलिटी के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उसको गुलाम बनाना चाहता है, मैं ये कह रहा हूं कि एक चलन है कि वो अपने हिसाब से नाम रखता है। उस महिला की जो पुरानी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी से कहीं दूर जाकर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करता है। इसीलिए भारत सरकार ने अभी पीछे क्या किया, पासपोर्ट में ये कहा कि महिला का सरनेम चेंज हो या आवश्यक नहीं, ये उसकी विश है कि वो सरनेम चेंज करके अपना पासपोर्ट बनाना चाहती है या अपनी आइडेंटिटी रखना चाहती है। वो अपने पुराने सरनेम के साथ अपनी आइडेंटिटी रखना चाहती है, बिकॉज वी आर डीलिंग अ इंडिविजुअल पर्सन एज ए पर्सनैलिटी। तो जब किसी भी कंट्री में आप उसका नाम चेंज करते हैं, तो नाम चेंज करने का मतलब ही यही होता है कि वो उसकी जो वैभवशाली परंपरा है, जो उसके गर्व का विषय है, उस विषय से उसको भटकाकर एक नई आइडेंटिटी दे दी जाए, जो नई इंपीरियल पावर के अकॉर्डिंग चलाई जाए। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और भारत में जब इंडिया नाम उन्होंने रख दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो नई आइडेंटिटी हो गई। मैकाले आया, उसने एजुकेशन सिस्टम बदल दिया देश भर का। एजुकेशन सिस्टम बदलने के बाद उसने आपकी जो पुरानी सांस्कृतिक एजुकेशन थी, वो सांस्कृतिक एजुकेशन पूरी नष्ट की, और सांस्कृतिक एजुकेशन नष्ट करके एक व्यावसायिक एजुकेशन शुरू कर दी। अब व्यावसायिक एजुकेशन मतलब फिजिकली अर्न कैसे हो, वो एजुकेट करना शुरू कर दिया, जो कि पूरी एजुकेशन में हमारे यहाँ एक 5% का हिस्सा होता था। 95% हमारी सांस्कृतिक एजुकेशन होती थी और हमारी सांस्कृतिक पहचान होती थी। इसलिए हमारी सांस्कृतिक पहचान भारत से है, हमारे देश की पहचान भारत से है। कोर्ट के अपने दायरे हैं, अभी सेठी सर ने बताया, कोर्ट के अपने दायरे हैं। कोर्ट के अंदर कोई लीगल इशू नहीं है, नेम इज नॉट अ लीगल इशू, लीगल कंफ्लिक्ट भी नहीं है। इसलिए कोर्ट ने जो ऑर्डर किया कि आप जाएं, सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन करें, यू आर फ्री टू रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट, और हम इस पर कोई स्टेप नहीं ले सकते क्योंकि देयर इज नथिंग लीगल कंफ्लिक्ट इन दिस। ठीक है, कोर्ट के अपने दायरे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। बट हमारे देश में जब शब्द इस्तेमाल होता है तो हमारे इतिहास को, जो हमें चाहिए, जिससे हमको गर्व हो। अब आप याद रखिएगा कि हम अपने नाम घर में बच्चों के रखते हैं, तो बच्चों के नाम रखते समय हमारे दिमाग में क्या होता है? बच्चों के नाम रखते समय हमारे दिमाग में होता है कि ये बच्चा, इसकी ये गुण है, ये भीम की तरह है, कि ये अर्जुन की तरह है, कि ये युधिष्ठिर की तरह न्यायवादी है, कि ये भगवान राम की तरह है, कि ये लक्ष्मण की तरह है। हम एक महापुरुष, उसकी देखते हैं उस बच्चे में, उसका नाम आइडेंटिकल हम वहां से उठाते हैं। हालांकि जब अपभ्रंश आता है तो अपभ्रंश के समय पर हम कुछ भी नाम रखने लगते हैं, पोलू, गोलू, चोलू, टोलू, कुछ भी नाम रख लिया। लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी जो बनाना चाहते हैं, वो आइडेंटिटी किसी महापुरुष के नाम पर ही बनाकर रखते हैं। भारत में आज भी आधुनिक समय पर जब आप नाम चेंज करना, समय चेंज हो रहा है, तो मेरे अपने बेटे का नाम मेरी मां ने रामांश रखा। उससे पहले कभी रामनिवास रखा जाता था, कभी रमेश रखा जाता था। आज के आधुनिक समय पर नाम कुछ ठीक है, इंजन चाहिए तो रामा, सत्यांश, शिवांश, हमारे ऐसे नाम हम रखने लगे। तो क्या है, एक आइडेंटिटी, भारतीय आइडेंटिटी की। बच्चा जब नाम रखने जाते हैं तो बच्चों के नाम रख कर
महसूस करे ये देश के लिए कुछ करे, ये अपने लिए कुछ करे, ये समाज के लिए कुछ करे, ऐसा ध्यान में रखकर नाम किसी का नामकरण किया जाता है। और किसी के नाम को चेंज यही सोचकर किया जाता है कि इसका जो इतिहास है उस इतिहास को बुलाया जाए और नए नाम डायरेक्ट बताया जाए कि तुम्हारा इतिहास यहां से, इसलिए उसका नाम आइडेंटिटी शुरू होता है जब से हमने का नाम ना रखा। तो अपने के समय पर हम कुछ भी नाम रखें, हम उसकी आइडेंटिटी जो बनना चाहते हैं वो आइडेंटिटी किसी ग्रेट सम्राट हुआ करते थे उनके नाम से भरत रखा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। भारत में 3 चीजें हैं, सदगुरु जी को अगर सुनेंगे तो वो 3 चीजों को संबोधित करते हैं। भा, भा का मतलब है संवेदना, भाव, हमारी इंद्रियां, जो हम संवेदना हमको महसूस होती है हमारे इन्वायरमेंट में, जहां पर हम रहते हैं, पहाड़ पर, जमीन पर, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, जहां कहीं भी रहते हैं, वहां का एक भाव हमारे मस्तिष्क में रहता है। तो हमें, हमारा देश ऐसा जिसका अपना एक भाव है और उस भाव का राग है, लिरिक्स है, धुन है, और उसके साथ अगर ताल मिल जाए उसकी, तो फिर वो संपूर्ण देश बन जाता है। यानी कि उस स्थान की सांस्कृतिक विरासत जिसका अपना राग और ताल है, और वो अपने उस राग और ताल की संवेदनाओं के साथ वो देश विकसित हुआ, उस देश को भारत कहते हैं। ये एक सांस्कृतिक नाम है, और भारतवर्ष के नाम से मुझे लगता है कि राजा का और सम्राट का नाम रखा गया होगा, ना कि सम्राट के नाम से भारत नाम रखा गया होगा। क्यों? क्योंकि भारत और जो सनातन हम जिसको कहते हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो आज भी वे ऑफ लाइफ है। हिंदू जिसको कहते हैं वो वे ऑफ लाइफ है, वो रिलीजियस नहीं, वो सांप्रदायिक नहीं है। हमारा देश संप्रदाय के आधार पर नहीं बना। अब किसी भी कंट्री को बनाने के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे आप खाड़ी में चले जाएंगे तो खाड़ी को बनाने के लिए रिलीजियस ग्राउंड था, नथिंग एल्स। एक रिलीजन था, उस रिलीजियस का ग्राउंड बनाया गया, और जो उस रिलीजन को स्वीकार नहीं करेगा वो उसका हिस्सा नहीं हो सकता। आप यूरोप चले जाएंगे तो यूरोप पॉलिटिकली यूनाइट होते हैं, उनको इंपीरियलिज्म पावर वहां डेवलप हुई तो वो पॉलिटिकली यूनाइट होना चाहते हैं। आप यूएस चले जाएंगे तो वो इकोनॉमिकली इंपावर्ड होते हैं, इकोनॉमिकली जो उनको कमाकर देगा उसको वीजा देंगे, जो कमाकर नहीं देगा उसको वीजा नहीं देंगे। तो वो उस तरह से। लेकिन भारत कैसे एक बना? भारत बना अपनी सांस्कृतिक विरासत के आधार पर एक। हमारे पूर्वजों ने बहुत काम किया और भारत को भारत नाम देकर एक सांस्कृतिक पहचान दी। जैसे मैं कहता हूं कि भगवान राम का इलस्ट्रेशन ले लीजिए। उत्तर भारत में उनका जन्म हुआ, उत्तर भारत से चलते हुए वे दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत में उनका महायुद्ध हुआ, और उस महायुद्ध में रावण को परास्त करके, जो एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण है, ब्राह्मण को परास्त करके और फिर उसके भाई को भूमि सौंपकर अपनी भूमि पर आए। अब वो जो प्रसंग है, जो रामायण का प्रसंग है, उस प्रसंग को पूरा भारत मनाता है। अब आप उनकी पहचान देखिए। उत्तर भारत में जब आएंगे तो भगवान राम को आप धोती और कुर्ते में पाएंगे कि वो एक धोती लपेटते हैं, ऊपर से एक मतलब वही लपेटते हैं और वैसे रहते सन्यासी भाव में। आप दक्षिण भारत में अगर रामायण देखेंगे जाके तो वो एक बड़ा सा मुकुट लगाते हैं, खूब चौड़ा सा एक घंघरा पहनते हैं, ऊपर राजसी वस्त्र पहनते हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, और इसी प्रकार तीनों राम, लक्ष्मण और माता सीता का वहां मेकअप किया जाता है और रामायण होती है। लेकिन वो उनका श्रृंगार अपने पहनावे के अनुसार करते हैं। उत्तर भारत में श्रृंगार अपने पहनावे के हिसाब से होता है, अपने लोकल कस्टम्स के अनुसार होता है, लेकिन भाव दोनों का एक है। यानी कि राम के आदर्शों को मानेंगे, ऐसा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण मानकर चलता है। अब राम को जब हम मानकर चलेंगे और अब संविधान बनाना शुरू करेंगे तो वी कैन नॉट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिपार्टिंग लॉर्ड राम फ्रॉम इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी कैन नॉट फॉरगेट रामायण, वी कैन नॉट फॉरगेट महाभारत, वी कैन नॉट फॉरगेट द वे ऑफ लाइफ इन इंडिया। इसलिए मुझे लगता है कि उस समय जब बहसें हुई तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा कि हम केवल इंग्लिश वर्जन के रूप में इंडिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज हमारी पहचान इंडिया के रूप में हो चुकी है, और पूरे विश्व में आज हम इंडिया की तरह जाने जा रहे हैं, और हम नए इंडिपेंडेंट हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय अगर इंडिया शब्द हटाकर पूरा इंडिया को ना डिनोट किया गया तो पूरे वर्ल्ड में एक नया कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, और यह संभव है कि भारत एक नया कंट्री बनकर आए। नया कंट्री इन द सेंस
1945 में जब हम यूएनओ के सदस्य बने तो इंडिया के नाम से बने। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने वहां पर एक एप्लीकेशन की यूएनओ में, और एप्लीकेशन में उन्होंने कहा वी आर द ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएनओ, सो रिगार्ड अस एज ए ओरिजिनल मेंबर। क्यों? क्योंकि इंडिया ओरिजिनल मेंबर है और हम इंडिया का ही पार्ट थे, इसलिए हमको भी ओरिजिनल मेंबर माना जाए। नाउ जनरल असेंबली डिसाइडेड, दे सेड दैट नो, you are not the original member, you are a new state. India is the original member. तो ये नाम का कंफ्यूजन अगर हम हो सकता है, उस समय इंडिया की जगह भारत शब्द इस्तेमाल करते तो हमको भी यूएनओ में एक नए मेंबर की तरह जाना पड़ता। जैसे पाकिस्तान को नए मेंबर की तरह जाना पड़ा, हमको भी हो सकता है नए मेंबर की तरह जाना पड़ता। मुझे लगता है उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की दूरदृष्टिता नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया शब्द इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बेटर होगा कि इंडिया शब्द हम कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए रखें। मुझे भारत शब्द से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग बोथ द वर्ड्स। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, अब हम रियल सेंस में स्वतंत्र हो चुके हैं मुझे लगता है, और जब हम रियल सेंस में स्वतंत्र हो चुके हैं तो अब हमको एक उत्साह की किरण चाहिए, हमको भारत, वैभवशाली भारत चाहिए। वो भारत चाहिए जिस भारत की जीडीपी अप्रॉक्स 60% पूरे वर्ल्ड की जीडीपी भारत में होती थी। हमें वो भारत चाहिए जिससे व्यापार करने के लिए पूरा विश्व हमारे पास आता था। हमें वो भारत चाहिए जो पूरे विश्व के सोने को खींचकर भारत में ले आता था। हमें वो भारत चाहिए जो भारत की छोटी से छोटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था, और वास्को डी गामा यहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेकर जाता है और पूरे यूरोप को मैसेज जाता है कि ऐसा भी कोई कंट्री है कि जरा से ये फ्री में मिल गए इसको, और वो वहां बहुत महंगे थे और इंडिया में इतने सस्ते बिकते हैं। और कोई देश ऐसा है जहां सोने की चिड़िया है, जहां सोना ही सोना होता है, महिलाएं सोना पहन के रहती हैं, पुरुष सोना पहन के रखते हैं, ट्रांजैक्शन सोने में होते हैं, करेंसियां सोने में चलती हैं, हर व्यक्ति के पास सोना होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल करेंसी आज भी है वो सोना है, और उस समय भी इंटरनेशनल करेंसी सोना हुआ करती थी। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको सोना मिलेगा। अब वो चीजें अगर आपको पुनः स्थापित करनी है और आपको भारतवासियों को ये बताना है कि नहीं, आप वो नहीं हैं जो अंग्रेजों ने बताया। अंग्रेजों ने हमारे नामकरण करके, हमारी शिक्षा पद्धति बदलकर, हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन करके ये दिखाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान मतलब क्या। So there's some issue with your audio, sir. Sir, you are inaudible right now. Can you please check, sir? So there is some issue. Sir, you are not audible. We can see you, but you are not audible, sir. There is some issue, I guess, with the audio. We cannot hear Mr. DK Dubey, sir. Sir, you lost your audio, I guess. All right. So we'll try to reconnect. I don't know why we have lost the audio. There must be some technical issue. Yes, sir. Sir, you can hear us, but we cannot hear you, sir. Can you please, sir, check the socket
whether it is connected, the audio one. Now you're Yes, sir. now. Yes, sir. Yes, you are audible now, sir. सो मैं ये कह रहा था कि कोई भी कंट्री संसार में ऐसा है जिसका अपनी सांस्कृतिक विरासत है, और वो सांस्कृतिक विरासत अगर वो भुला देगा तो वो कंट्री कभी अपलिफ्ट होकर खड़ा नहीं हो सकता। और हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, और हम संसार के सबसे पुराने, और हम संसार के ऐसे कंट्री हैं जिसकी 60% वर्ल्ड की जीडीपी हुआ करती थी। हम वो कंट्री हैं जहां एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट कुछ नहीं होता था। केवल घोड़े वोड़े कुछ हम मांगते थे, खाते थे, इसके अलावा सब कुछ एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। इसलिए हमारी सांस्कृतिक विरासत को डिनोट करता है भारत शब्द, और भारत शब्द हमारे लिए परफेक्ट है। अगर इंडिया शब्द है भी, तो मैं ये कहता हूं कि अब जो डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा था कि इंडिया शब्द पूरे विश्व को चूंकि बताने का है, और पूरे विश्व के हमारे संबंध इंडिया शब्द से हैं, इसलिए अब जो भारत शब्द है, मुझे लगता है कि अब लेजिस्लेशन को ये प्रयास करना चाहिए, और गवर्नमेंट को ये प्रयास करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट लाए। और जो हिंदी इंग्लिश वर्जन है, नाम का कोई हिंदी इंग्लिश वर्जन नहीं होता। मेरा नाम अगर डीके दुबे है तो इंग्लिश में भी डीके दुबे है और हिंदी में भी डीके दुबे है। उस समय ये उस चर्चा में आया कि हिंदी में भारत कहेंगे और इंग्लिश में इंडिया कहेंगे, लेकिन उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसलिए अगर भारत को हम पुनः ऊपर उठा रहे हैं और अब हम वैभव याद दिला रहे हैं, तो अब ये इंडिया वर्ड जो है वो इररिलेवेंट टाइप हो गया। हम उसको चेंज करवा सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नहीं, दोनों शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि हमारी पहचान इंडिया के रूप में बन चुकी है। हमारे सारी पहचानें उन्होंने इंडिया के नाम से बनाई, और एक 200 वर्ष तक इंडिया, भारत को इंडिया शब्द से ही रखा गया। इसलिए आज की तारीख में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसलिए कोर्ट उस पर कोई टिप्पणी नहीं करे, और ना ही की उन्होंने। बिल्कुल राइट डायरेक्शन में उन्होंने कहा यू आर नाउ फ्री टू रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट। उन्होंने गवर्नमेंट को फॉरवर्ड भी नहीं किया, उन्होंने कहा यू कैन रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये देश में एक हमारे अपनी पहचान को दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता है। और ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान हैं, ऐसे बहुत सारे लॉज में प्रावधान हैं जिसको अब हम अपने देश के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब हम 70 साल हो चुके हैं हमको देश को, नाउ वी कैन। सो आई थिंक राइट नाउ वी आर कंक्लूडिंग। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन द पर्सन कैन आस्क। या अभिराज सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरा जो प्रश्न था और आपने जिस तरीके से इस पर रिसर्च किया हुआ है, एंड जो आपने बताया है सर, जो भाव जागता है व्हेन वी से इंडिया और भारत, तो देयर इज अ डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो हम कह सकते हैं हमारे सांस्कृतिक या पारंपरिक रूप में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो दरकिनार किया नहीं जा सकता सर। और now sir, there are many people who want to ask questions, so we are starting with it. I'd like to ask Mr. Rahul Sethi sir. Sir, as you have said, like जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं इसको लेकर the PIL which we are seeing in the courts which people are filing, they are somewhere, it may be a political agenda behind it. Like we have seen yesterday also in Tamil Nadu, uh, almost 1,000 names have been changed. So stating that all those names were actually belong to identity given by the Britishers. So they said that we will change the names so that people can connect in better way. And having said that, we also know that in a very few months we will going to witness elections also in Tamil Nadu. So is there a direct relation between this issue and the politics, sir? Basically, why was of the viewpoint that it is just in order to get the political mileage. Like very well you have cited about the example of Tamil Nadu. So if we talk about Tamil Nadu itself, the court of Madras
and the city's name is Chennai. So the name has been changed from Madras to Chennai, but the High Court still remains the High Court of Madras. So in 2016, there was a bill proposed to change the name of all the three high courts, that is of Bombay, Calcutta, and Madras, to Mumbai, Kolkata, and Chennai. But since it lapsed in the year 2016, so it's still not been changed. So if it would have been changed, like what we are saying is, if a government is changing any name or proposing any name, then in the official books it's been changed. But in the media houses or with students or with common persons, it has not been changed. We still fondly remember them by those names. So no heavens are going to fall if the name is being changed or not. Therefore, why I'm saying is it's just to get the political mileage or to get the publicity. So, having said that, sir, a question additional to the previously asked one, that whether this name changing exercise, whether it may cause any chaos in the current society, like whether like 130 crore people, and there are almost 3 crore people who are NRIs who are living outside India. So whether they will be accept to, suppose if we go with this change, this kind of change, so whether they will be able to accept. Let's go strictly to the legal point of view, as we all are very well aware that all the amendments or all the changes are prospective in nature. They are not retrospective in nature. So if at all any international contracts are being made, or even if contracts between states are being made, then it would have been a prospective effect only, not retrospective effect. So changing name or not changing a name would not cause any legal attachment to it. Right, sir. So now I'm having one question. I'm taking one question for Professor D.K. Dubey. Sir, I want to ask that whatever you have said, you have given a different perspective, and which is I consider very genuine. Having, like, we were a colony, and for more than 200 years, and Indians have gone through a lot to become a democracy. And now, after they have their own constitution, they must associate themselves with their own identity, which was previously distorted by, I would not name, but there are a lot of factors which have contributed in distorting the identity. But my question is, sir, that, like, if now we go ahead with this change, if we want to bring, so what will be the repercussions of it economically? So, like, I'm asking, there would be a lot of technical changes to be made in various government departments and a lot of things. So how it will going to affect the country economically? Dubey sir. Sir, you are on mute. Yes, sir. Yes, sir. ये इकोनॉमिकली कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम बहुत बार ये भी कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिवली हम उसका नाम चेंज कर लेंगे, तो जहां पर लिखा होता है वहां हाथ से काट कर भी आगे लिख देते हैं. अगर पहले से हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव ये है कि डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, पेपर छपे हुए हैं, दोबारा करना पड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. ये तो जिस समय एक ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है या नेम चेंज हो जाता है, तो बाद में काट कर भी लिख देते हैं, और जब नया प्रिंट होगा तो नया प्रिंट होकर आ जाएंगे. ये कोई बहुत बड़ा इशू ही नहीं है. इसलिए इकोनॉमिकली तो उसको नहीं देखना चाहिए. हाँ, कुछ लोगों के पेट में दर्द जरूर होगा, क्योंकि पेट में दर्द इसलिए होगा क्योंकि जब आप भारत याद दिलाएंगे ना किसी को, तो भारत याद दिलाने पर जो फोर्सेस भारत को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, आइडेंटिटी खत्म करना चाहती हैं. अब मैं आपको बता दूं कि जिस समय केपी शाह ने अमेंडमेंट रखा ना, तो उन्होंने कहा सेकुलर वर्ड इसमें जोड़ो, फेडरल वर्ड इसमें जोड़ो, सोशलिस्ट वर्ड इसमें जोड़ो. हमने 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा, लेकिन ये चर्चा संविधान जब नया बन रहा था तब भी हुई थी कि व्हाई नॉट वी आर एडिंग द वर्ड सेकुलर, फेडरल, सोशलिस्ट. डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का जवाब दिया, और 25 नवंबर सन 1949 का डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबको सुनना चाहिए. उन्होंने कहा वी आर नॉट द फेडरल कंट्री, वी हैव अडॉप्टेड द फेडरल स्ट्रक्चर ओनली, एंड फॉर दैट वी हैव डिवाइडेड द पावर्स
लाइक 7 शेड्यूल। हम फेडरेशन नहीं है क्योंकि हम किसी गठबंधन से देश नहीं बना रहे हैं, हम यूनिलेटरल एक देश हैं और हजारों सालों से एक देश हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा सेकुलर शब्द डालने का यहां पर कोई मतलब नहीं होता क्योंकि इंडिया ऑटोमेटिकली सेकुलर ही है। इंडिया में इतने सारे रिलीजन हैं क्योंकि भारत की जो पहचान है वो किसी संप्रदाय से नहीं है, किसी रिलीजन से नहीं है। भारत की पहचान अपनी सांस्कृतिक है और चूंकि सांस्कृतिक हमारी पहचान है इसलिए रिलीजन यहां प्रिवेल ही नहीं करता है, और चूंकि रिलीजन प्रिवेल नहीं करता है इसलिए इस शब्द की यहां जरूरत नहीं है। ऐसे ही उन्होंने कहा सोशलिस्ट शब्द जोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा भैया इंडिया ऑलरेडी सोशल मॉडल पे ही खड़ा हुआ है और जब वे ऑफ लाइफ इंडिया की बेसिक फिलोसफी, तो सोशलिस्ट शब्द की जरूरत नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भारत का, डॉक्टर अम्बेडकर उस समय बता रहे हैं। साथ में उन्होंने ये जरूर कहा कि देखिए ये हम पहली बार कोई संविधान बना रहे हैं भारत में, ऐसा नहीं, इससे स्ट्रॉन्ग संविधान बनते रहे, इससे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भारत में बनते रहे। और उन्होंने बुद्ध के समय को याद दिलाया, उन्होंने कहा अशोक के समय को याद करिए, भगवान बुद्ध के समय को याद करिए, बुद्ध के संघों को याद करिए। तो ये यूनियन जो है वो भारत में पहली बार नहीं बन रही, ये भारत में यूनियनें बनती रही हैं और संविधान बनते रहे हैं। इसलिए ये संविधान बहुत कुछ करेगा ये नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन द पीपल हाउ दे आर अडॉप्टिंग इट। ये लोगों पर और एग्जीक्यूटिव मशीनरी पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे इसको स्वीकार करते हैं और कैसे इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं और भारत को भविष्य के लिए कैसे तैयार करते हैं। ये सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। और अगर ये भारत बनते, ये संविधान बनते समय जो संवैधानिक लोगों की सोच है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो संविधान को नकार दूंगा। इसी संविधान को जिसको उन्होंने ड्राफ्ट किया, कहा मैं इसको नकार दूंगा अगर भारत के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये नहीं चलेगा। तो क्या है कि हमारे देश का एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए। अब आप ऐसे समझिए कि आप कोई नया घर खरीदते हैं और कोई आपने नया घर खरीदा, अब उसका नाम कुछ एबीसीडी लिखा था, क्या हम उस घर का नाम अपने अकॉर्डिंग, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने वंश के अकॉर्डिंग नहीं लिखते क्या? हम उस घर का नाम चेंज करते हैं और एक फीलिंग आए हम में। जब तक किसी व्यक्ति में फीलिंग नहीं होगी, जब तक किसी व्यक्ति का अटैचमेंट नहीं होगा, जब तक आप देश को अपना देश नहीं समझ रहे होंगे, और नाम केवल एक वॉइस नहीं है, केवल एक साउंड नहीं है। नाम अगर केवल साउंड है तो वो यूजलेस है। नाम एक पहचान है, नाम एक स्फूर्ति है, स्टिमुलाइज करती है हमको। क्यों नहीं मेरा नाम कोई नया रख दिया जाए और कोई बुलाता है तो अपन नहीं ध्यान रखते, लेकिन बचपन से जो नाम हमारे दिमाग में बैठा हुआ है उसके नाम से कोई मुझे अचानक बुलाए तो एकदम अपना सर उधर तरफ जाता है, जबकि मैं चाहता हूं कि मैं उधर ना देखूं, क्योंकि अपना मस्तिष्क उसकी तरफ जाता है। तो क्या है कि जो नेम है ना, ये हमारी विरासत है। इस विरासत को हमको सजोना पड़ेगा। इकोनॉमिकली अगर आप इसको सोचने लगेंगे बहुत ज्यादा तो इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा भी तो क्या हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्या हम लोगों को सांस्कृतिक शिक्षाएं नहीं देते क्या? फिर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किस लिए चलाते हैं दुनिया भर का खर्च करके? हम इसीलिए चलाते हैं ना, व्यक्ति का निर्माण हो, व्यक्तित्व निर्माण हो भारत में रहने वाले लोगों का। और व्यक्तित्व निर्माण करने से पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत दे दिया उसको, और उसको फीलिंग ही नहीं आई। जिसको फील नहीं होगा ना, अभी क्या है लोग कन्वर्जन करते हैं कि भाई ये हिंदू से इस्लामिक हो गया, ये हिंदू से क्रिश्चियन हो गया। मुझे बताइए नाम क्यों चेंज करते हैं? भाई मेरा नाम अगर डीके दुबे है, मैं कल को अगर मुसलमान हो जाऊं, मैं कल को क्रिश्चियन हो जाऊं, तो मेरा नाम डीके दुबे रहने में क्या बुराई है? किसको क्या समस्या है? इससे मैं ऊपर वाले से इंटरेक्ट होने में कुछ समस्या आएगी, लेकिन वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले आपका एक नया नामकरण संस्कार करेंगे ताकि आप अपने वैभव को भूल जाएं। अगर आपको मेरे डीके दुबे नाम में अगर मुझे वैभव याद रहेगा तो दूसरे रिलीजन में जाने के बाद भी मैं उसकी गुलामी नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सबसे पहला काम होता है कि नाम चेंज हो। इसीलिए कोई कन्वर्जन होता है, किसी को स्लेव बनाया जाता है, किसी को लेकर आया जाता है, तो सबसे पहले उसका एक नया नाम रखते हैं। जैसे आप टैंक खरीदते हैं, आप प्लेन खरीदते हैं, फाइटर जेट खरीदते हैं, बनाया किसी कंपनी ने यूरोप में, बनाया किसी कंपनी ने रशिया में, भारत में आने के बाद उसका नया नाम रखते हैं हम। तो भाई अर्जुन हो गया, हमने एमबीटी का नाम अर्जुन रख दिया कि ये भाई अर्जुन है, जबकि हमने तो बनाया नहीं, हमने तो वहां से खरीदा असेंबल्ड। लेकिन भारत की पहचान उसके साथ जुड़ी होगी तो उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है उसकी फीलिंग अटैच्ड होगी उस टैंकर के साथ, तब वो युद्ध लड़ पाएगा।
अदरवाइज वो उस टैंकर के साथ रहते हुए उसकी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसकी फीलिंग नहीं आएगी। तो दिस इज द मेन कॉज। इसलिए मुझे लगता है कि भारत शब्द जो है वो अब एडॉप्ट कर लेना चाहिए, इससे इकोनॉमिकली रिपरकशन मुझे नहीं लगता कुछ होगा। एक क्वेश्चन इसमें और किसी ने पूछा था यस सर। कि अगर नाम पार्लियामेंट चेंज कर देती है तो क्या कोर्ट में कुछ हो सकता है? मैं आपको जब हम 370 लेकर आए थे तो हमने पिटीशन कोर्ट में डाल रखी थी। एक पिटीशन कोर्ट ने डिसमिस की थी किसी की हमसे पहले, और उस पिटीशन में ये कहा गया था, किसी ने डाला कि साहब 370 को एब्रोगेट कर दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 370 is likely to be permanent unless until not abrogated by parliament। मतलब मेरे लिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है मेरे लिए ये परमानेंट है जब तक कि पार्लियामेंट इसको एब्रोगेट ना कर दे। तो आप जाएं पार्लियामेंट के पास, ये काम पार्लियामेंट का है, ये काम मेरा नहीं है। मेरे पास अगर चैलेंज करना है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, हार्मोनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखिए। लेकिन आप कहते हैं ये नाम चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसको एब्रोगेट एवे ही कर दो, अच्छा नहीं लगता हमको, तो कहते हैं ये लेजिस्लेशन का काम है उनके पास है। और लेजिस्लेशन जब उसको एब्रोगेट करता है किसी को तो फिर कोर्ट उसको बहुत तवज्जो नहीं देता। कोर्ट कहता है ये उनका काम था, उन्होंने किया है। इसलिए 90% केसेस में पार्लियामेंट से जो अमेंडमेंट आता है उस अमेंडमेंट के साथ कोर्ट उसके फेवर में देखता है, उसकी क्रेडिट को देखता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर नाम चेंज कर देती है पार्लियामेंट तो कोर्ट को इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और कोर्ट में ये पिटीशन को लेकर भी आता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो किस ग्राउंड पर लेकर आएगा? क्या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में लेकर आएगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अगेंस्ट में लेकर आएगा? कैसे कैसे सिद्ध करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है? इसलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत विशेष प्रभाव कोर्ट में जाने पर नहीं पड़ेगा। जी Abhinav, your audio is mute. एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है जी हाँ सर। कि रिलीजियसली बायस तो नहीं हो जाएगा? मैंने बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। ख्याल से पूरे लेक्चर में बताया कि रिलीजन और कंट्री की सांस्कृतिक विरासत दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिलीजन हमारे कंट्री का बेस नहीं है। मैंने कहा भारत शब्द किसी रिलीजन से, कोई रिलीजियस नेम नहीं है। भारत 3 शब्दों से मिलकर बना है, भाव, राग और ताल। और इस नाम को अगर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भारत जो है वो भारत की सांस्कृतिक पहचान, भारत की संस्कृति, वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ इज नॉट अ रिलीजन। रिलीजन के मामले में मैं आपको यहीं पर, अगर आपके पास थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दें, तो ये आर्टिकल 25 की जो डिबेट हुई ना, जिसमें रिलीजियस राइट दिए गए थे, और जो किसी ने पूछा है मेरे ख्याल से वहीं से उनका कनेक्शन है आर्टिकल 25 से, तो डॉक्टर अंबेडकर का वर्जन आया। डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर कहा कि देखिए, रिलीजियस फ्रीडम डज नॉट मीन्स कि आप सबके साथ क्या करेंगे। रिलीजियस फ्रीडम मीन्स हाउ यू विल इंटरेक्ट विथ योर गॉड। आप अपने परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ते हैं, वो रिलीजियस फ्रीडम है। और वो सबको है, हम किसी को नहीं रोक सकते कि वो परमात्मा को, परमेश्वर को भगवान कहता है, अल्लाह कहता है, परमेश्वर कहता है, कुछ और कहता है, हमसे क्या लेना देना है। तो आप ईश्वर से कैसे अपना इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज द रिलीजन। बट व्हेन यू आर सेइंग विद द वे ऑफ लाइफ कि लाइफ क्या है, तो लाइफ इज नॉट वेरी मच रिलेटेड टू द रिलीजन। लाइफ, जिसको हम यहां पर हिंदुस्तान में धर्म शब्द इस्तेमाल करते हैं, धारण करना, कि हमने धारण क्या कर रखा है, हाउ वी विल हैव टू इंटरेक्ट विद द अदर पीपल इन अदर थिंग्स, दैट इज एन धर्म। इसलिए जब आप भारत शब्द इस्तेमाल करते हैं तो कहीं से भी इसका रिलीजियस इंडिकेशन नहीं है, और रिलीजियस इंडिकेशन नहीं है इसलिए ये रिलीजियस बायस नहीं हो सकता। जी सर बिल्कुल आपकी बात को एक्सेप्ट करते हुए, पर इसमें एक प्रश्न और उठता है कि जो आपने कहा कि भारत जो नाम है वो विरासत में मिला हुआ नाम है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है, और हम उससे एक कहीं ना कहीं इमोशनल रूप से भी कनेक्ट होते हैं। बट क्या पिछले ऑलमोस्ट 75 सालों में, हम कह सकते हैं आज़ादी के बाद से 73 से 75 सालों में, हमने तो जब इंडिया एक नाम लेकर अपनी पहचान दुनिया में बनाई है और आज दुनिया भारत को इंडिया के ही नाम से जानती है, तो कहीं ना कहीं क्या ये खतरा नहीं है, ये डर नहीं है कि वो चीज वी विल लॉस्ट समवेयर, लाइक अगेन कहीं ना कहीं हमको दोबारा से
वो चीज क्रिएट करनी पड़ेगी? टेल मी वन थिंग कि इंडिया का जो नाम आप कहते हैं वो अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में उन्होंने इंडिया वर्ड इस्तेमाल किया, या उससे पहले भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर ये वो वर्ड इस्तेमाल किए। उससे पहले जब हम विश्वगुरु की स्थिति में थे, पूरे वर्ल्ड पर प्रिवेल कर रहे थे, तब हम 200 या 300 रियासतों में भी तो बटे थे, और 300 रियासतों के नाम अलग अलग थे। अभी आप लोगों ने शेट्टी सर ने डिस्कशन किया कि भाई मध्य भारत था, और मध्य भारत को बाद में मध्य प्रदेश, मध्य भारत में कई एक और स्टेट्स जोड़े गए, प्रिंसली स्टेट्स। मध्य भारत तो एक यूनियन बनाया गया था स्टेट्स का, और फिर मध्य प्रदेश जब बना तो उसमें और चीजें जोड़ दी गई, तो नया हमने, लेकिन उसके आइडेंटिकली नाम दिया हमने। इसलिए जब आप ये सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी ऐसी बन चुकी है, तो वो आइडेंटिटी बन जरूर चुकी है, मेरा चेहरा वैसा हो चुका है, लेकिन मेरे अंदर की स्फूर्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे एक उत्साह आए और मेरी विरासत हमको मिले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या विश्व हमें किस नजर से देखता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंटरनेशनल लॉ में अगर जाएंगे तो रिकॉग्निशन एक चैप्टर पढ़ते हैं हम सब, और रिकॉग्निशन का मतलब होता है मान्यता। तो उसमें वो कहता है दो तरह से होती है, एक तो स्टेटहुड होना चाहिए। स्टेटहुड जब आपके पास है तो अगर किसी ने आपको मान्यता नहीं दी तो भी आप राष्ट्र हैं, और दूसरा कहते हैं दूसरे आपको मान्यता दे देते हैं तो आप राष्ट्र हैं। तीसरी थ्योरी कहती है दोनों ही चीजें होनी चाहिए। तो व्हाट द अदर पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग अस, इट्स नॉट एन इश्यू। वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग माई सेल्फ, इट्स एन इश्यू। दूसरे हमको कैसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये मेरा इश्यू है। ये मेरी आत्मशक्ति को कमजोर करता है। तो भारत की पहचान तो एंशिएंट टाइम से भारत की तरह ही रही। मुस्लिम जगत में भी जब मुस्लिम भारत में आए तब भी भारत ही कहा जाते रहा, बाद में उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा, लेकिन हमारी पहचान भारत से कभी डिपार्ट नहीं हुई। इसलिए मुझे लगता है कि आज अगर हम भारत कहें पूरे विश्व को, तो नथिंग इज द प्रॉब्लम। एक पूरे विश्व को थोड़ा सा चेंज लाना है, और मेरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को कभी वीजा नहीं देते थे, और आज वही लोग हैं जो एयरपोर्ट पर उनको लेने जाते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व से, राष्ट्र के व्यक्तित्व से आपका निर्माण होता है, आपकी विल पावर से आपका निर्माण होता है। कभी हमारा प्रधानमंत्री जाकर एयरपोर्ट पर कपड़े उतार कर झगड़ा दिलवाता था, और आज का प्रधानमंत्री हमारा जाता है तो वहां के राष्ट्रपति उसको प्रोटोकॉल तोड़कर लेने आते हैं। व्यक्तित्व है, उसने भारत को पहचान ली है, भारत का व्यक्तित्व निखार कर लाए हैं, और वो जहां कहीं भी जाते हैं, जब भी जाते हैं तो भारत की बात जरूर करते हैं। आज भी एपिडेमिक के टाइम पर वो लगातार उन्होंने शुरुआती यहां से कि देखो पूरा विश्व नमस्ते स्वीकार कर रहा है, ये हमारा था, पूरा विश्व नमस्ते स्वीकार करता है, ये हमारा था, हमारी सांस्कृतिक विरासत देखो पूरे विश्व में है, वो आज विश्व स्वीकार कर रहा है। वो आज भी लगातार बोल रहे हैं, और इन बातों को विश्व रियलाइज करता है कि नहीं, भारत अब अपने आत्मबल पर, अपनी शक्ति पर खड़ा हो गया है। अब भारत वैसा नहीं रहा जिसको हम डिविलाइज कर लेंगे। यही कारण है कि चीन के बॉर्डर पर जो भी हो रहा है, वर्ल्ड वाइड जो भी हो रहा है, हम जब 370 हमने डाइल्यूट किया तो विश्व ने हमसे नहीं कहा कि ये क्या किया, और उससे पहले जरा सी बात होती थी तो विश्व हमारे सामने खड़ा होता था, उनसे नहीं पूछता था, हमसे पूछता था कि ऐसा कैसे कर लिया आपने। लेकिन आज विश्व हमसे नहीं पूछ रहा है, तो हमारी पर्सनालिटी हमारे व्यक्तित्व से है। जिस समय हम अपना व्यक्तित्व निखार कर सामने लाएंगे और हम कहेंगे कि नहीं, मेरा अपना सिस्टम है, उस सिस्टम को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, पूरा विश्व उसको स्वीकार करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं। Right, sir. I'm having one question for Rahul sir. Sir, do you think that this issue, which now we are discussing, and it has been raised recently in the Supreme Court also, it is leading to another question of what should be the language? Like it has been discussed earlier also in the north side of India. Northern India has always supported for Hindi to be used as a language. And it has been debated all over through various podiums. Like we have seen, many people say that Hindi Rashtra Bhasha honi chahiye, and actually nothing sort of mentioned in Constitution that Hindi is national language. Hindi is official language of the country. So, do you think these kind of debates, like whether we should have
one name, then it may come to the language part also, and then it may move on to the name of other cities and other things. What do you think, sir? Definitely, this question must have arisen either from a person who is regularly attending the court proceedings or the intern who is going to the court regularly. Because only a practical, knowledgeable person can ask this question. Because what we are seeing is like if we talk about the Indore High Court, in Indore High Court there are 8 to 9 benches. In Right. 8 to 9 benches, there are almost 150 to 200 cases that is being listed daily. So why I'm saying this is like what has happened. Okay, if we entertain that, okay, if we entertain the petition that name of India has to be changed to Bharat, then after 5 years down the line, another petition would come. They change the name from Bharat to Hindustan, then another from Hindustan to Aryavrat, and this is not the sole purpose of creating high court or creating parliament debate. The focus and the power should rest on like how we can progress issues of monetization, demonetization, Surface High Act, new acts which can be passed in law, and a debate has to be made for those reasons. Like Dubey sir has very aptly said that when there was a discussion in the Constituent Assembly, in that Constituent Assembly there were many prominent speakers. To name few was Seth Govind Das ji, Kamal Pati Tripathi ji, now Hargobind Pant ji. So all those prominent persons have discussed it and have raise their views. Like what we are seeing is that if at all High Court finds any flaw, or I may be corrected, it is not a flaw. If High Court finds that in Constitution there are with changing times certain provisions need to be overruled or need to be amended, then High Courts or Supreme Court definitely intervenes. Like previously in case of reservation, Indra Sahni's case has come. After Indra Sahni's case, there was an amendment in Article 16. Then M. Nagaraj case has come with respect to reservation in promotion. And that was also constitutional bench judgment. Subsequently, another amendment was done just to bypass the orders passed by this honorable court. So what is that is that like Ram Mandir issue, it was a major issue. So for that, a discussion has to be done. But for me, changing name from India to Bharat is not such a issue in which much time and energy has to be given it, because a debate has been done by the Right. Constituent Assembly for a period of 2 years, 11 months, and 17 days. And Right. after that, only on 20th January 1950, that was incorporated. Right, sir. Sir, that's very well you have stated that. See, if we look at these things through legal point of view, we understand that how things are really are, and what we must supposed to be doing in these days. So, having said that, I am going ahead with the question which I am asking to both of you, sir. So I would like to request Rahul Sethi sir to first answer me. Looking at the current scenario, we are undergoing a lockdown. There is a pandemic situation out there, and if in these times we must talk about uh, having judiciary to be active on online modes also, like we have witnessed the problems we were facing lower courts also and higher courts also. So there is a debate. I have recently came across options for online mediation also, that online mediation should be started, and other alternatives also, so that judiciary can be more technologically sound, and such situations must not hamper the process of justice. So uh, whether is it a right time to debate over these issues, or will there never be a right time? Means we can't wait for things. Whether we should focus on uh, more development prospects rather than being on the issues related with identity. Like Sir, certainly, this is not the right time. If at all there would have been any right time, because what is happening is like Supreme Court has done nothing. Like in common practice, what we always say is that petition, it's better to get petition disposed of than to get petition dismissed of. So when the petition is getting dismissed, what you say to the court is
kindly grant us permission to approach the concerned authority, and in accordingly the petition is disposed of. So it is nothing but a petition. The fate of the petition was more or less dismissed only at this point of time. And I am nothing, and I am no one to comment on that. But I can certainly comment on the persons who are approaching the court, because their agenda is nothing just to get the publicity in these times and nothing else. Dubey sir, I would request you to throw some light on this. We are running short on time. I just want you to answer on this prospect, that whether this is the right time to go ahead with these issues, or we should focus on the other issues, like we are facing many challenges in the healthcare sector also. This lockdown has shown us where we were lacking, and on prospects of many other things, not only limited to the healthcare. So is this a right time, or will there be any right time to go over these things? Dubey sir. Sir, yes sir. Yeah, are you listening? Are you hearing Yes me? sir. Yes sir. Okay. So, in my opinion, all things are our problems. So, we have to deal all these problems, and problems are never ending. So, simultaneous with the problems, we must have to see the other things also. The what can we do for a nation? What can we have to forward simultaneous with the dealing with the problems? Because we have a government structure and we have a parliamentary structure. So we can't say that only one problem, healthcare problem, we have to concentrate on that, and other transport and roadways we do not have to concentrate on. All problems are our problems, and there is a various ministries who have to deal. And right now, when we are saying about your own personality, so for with each and everything, like you are doing a job somewhere, and that institution is depend on you, but there may be the marriage in between this, there may be some other issues in between this, there may be you can make some house, you can purchase something, you can identify yourself. So these all things we have to harmonize. So in my opinion, if right now some people are saying that the name has to be changed, then not to change immediately, but we have to start the discussion on that. We can start to make the views on that. We can propose some things in situation. We can make a general consensus on that. So we will start from here, and then sometimes when the general consensus will be there, we can change it easily. Right sir, right sir. Thank you sir, thank you so much. Now I believe it's time to say goodbye to this session. I, I totally believe that all the participants have gained so much knowledge, and they have seen a broader perspective of the issue which recently came up, and uh, all the students who are in way of making their career in the legal field, they must understand that how the things to be pursued, what ideas, what thoughts you need to have while going over any issue, and how significant it is in all the times, considering that there can be two sides of every issue. So thank you so much sir. We are much obliged to have you, Professor D.K. Dubey sir. It was a pleasure to have you, and you have shown us beautiful insights on the issue through your thorough research. And as we all know, you are a learned personality. And I would also like to thank Mr. Rahul Sethi sir for giving his time and showing his perspective also over the issue. And I definitely feel that your words of wisdom is going to benefit the students to understand the real issue behind all this debate which is going on. Thank you so much, sir, for joining us and making this webinar successful. It was a wonderful session. And I would also like to thank our management, Mrs. Ankita Gupta ma'am and Nikita Pandey ma'am, for letting us have this session, and for the encouragement they have provided. I'd also like to thank all the participants who have joined us over across the country,
and I believe they have benefited a lot through this webinar, and we will continue to have such informative sessions for you in future also. And I would also like to thank the team IMI, which has also done their role, as it was not possible to connect every people so without them. So thank you so much all for joining. It was a wonderful session and very informative too. I believe it's going to benefit all of us. Thank you, sir, for your time and for taking over the questions and solving the queries. Thank you, Thank you, Dubey sir, Dubey. and thank you, Rahul sir. Thank you, Okay, Dubey, thank sir. you. Thank you, Dubey, sir. Thank you, Abhiraj ji. Thank you all Thank you, for sir. giving the session. Thank you, sir. Thank you, sir. There is one announcement which we have already shared on the chat screen. You must fill the feedback form so that your e-certificates can be processed. So everyone who has participated, kindly give your feedback to the session, and you will receive your e-certificate through your email ID. Thank you so much. इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।